اور ہم نے اس پر تشویش کا اور ریزرویشن کا اظہار کر دیا ہے. اب آگے بھی ہم دیکھتے رہیں گے, مانیٹر کرتے رہیں گے, اور پل پل کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ ساتھیوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. میں یہ بھی آپ کی توسط سے بات سامنے رکھنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو مظاہرے ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں, چاہے وہ مظاہرے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے ہوں, چاہے پھر وہ لاہور کے اندر طلباء کا مظاہرہ ہو. یہ مظاہرے جو ہیں پہلے بھی ہوا کرتے تھے, کیونکہ جمہوری حق ہے لوگوں کا اپنی ڈیمانڈز کو آگے رکھنے کا. ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کے اندر اس جمہوری جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں. لیکن پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ جس طریقے سے ڈنڈے برسا رہی ہے, ٹیئر گیسنگ کر رہی ہے احتجاج کرنے والوں کے اوپر, اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ وہ ٹیئر گیسنگ پھر پارلیمنٹ کے باہر ہو رہی ہو, آپ کے کیپٹل کے اندر ہو رہی ہو, سرکاری ملازمین کے اوپر ہو رہی ہو, خواہ وہ 20 گریڈ یا 21 گریڈ کی ملازمین کیوں نہ ہو, اور ان کی جائز ڈیمانڈ پہ ہو رہی ہو. اور وہ جائز ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھائی جس رفتار سے آپ نے مہنگائی بڑھا دی ہے, کم از کم تھوڑا تو خیال کریں, 1-2 روپے آپ بڑھانے سے جو ہے وہ معذرت کر لیتے ہیں. اور یہ آج کا ان کا نہیں تھا اعلان, یا پرسوں کا نہیں تھا, یہ اعلان پچھلے 2 ماہ سے انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں اس میں اضافہ کیا جائے. ہم اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے, 2 وقت کی روٹی بھی آج مشکل ہو گئی ہے. کے پی کا ایک وزیر تو کہتا تھا نا کہ 2 روٹیاں نہیں کھائیں, 1 روٹی کھائیں. تو واقعی یہ اسی طریقے سے شاید لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں, شاید یہی نسخے ان کے پاس ہیں. ہم وفاقی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت کے اس رویے کی سخت مذمت کرتے ہیں. ابھی یہ معاملہ یہاں تھما نہیں ہے, انہوں نے کوئی ڈائیلاگ ضرور کیے ملازمین کے ساتھ, لیکن پیپلز پارٹی دیکھے گی کہ جو وعدے کیے گئے ہیں سرکاری ملازمین کے ساتھ وہ آیا کہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں, ہم یہ بھی دیکھیں گے. ہم نظر رکھے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اوپر, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ہماری موومنٹ جو ہے وہ زور و شور پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ فیصلے کے مطابق پی ڈی ایم میں موجود تمام جماعتیں اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کوئی بھی گراؤنڈ خالی نہیں دیں گی, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو, بائی الیکشن ہو. بائی الیکشن سے میں آپ کی توجہ اس جانب بھی راغب کراؤں گی, جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں, بالخصوص صوبہ سندھ میں, جو 2 بائی الیکشن 16 تاریخ کو ہو رہے ہیں اور 1 بائی الیکشن قومی اسمبلی کا 21 تاریخ کو ہو رہا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹس آن گراؤنڈ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, کیمپین چل رہی ہے. اور ابھی جو سانگڑ کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی, اور جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے صوبائی نشستوں کا, دونوں کے اندر ہماری جو کیمپینز ہیں وہ جاری ہیں. ہم آپ کی توسط سے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ اب آپ پر بہت زیادہ منحصر ہے پاکستان کے آئین کے حساب سے کہ آپ انشور کرائیں کہ یہ الیکشن صاف ہوں, شفاف ہوں اور منصفانہ ہوں. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہمیں سینٹ میں تو نظر آئی کہ آپ نہیں دے رہے ہیں. آپ حکومت جو ہے اس کا پلہ بھاری رکھ رہے ہیں, اور اپوزیشن کی جماعت کو آپ گھاس بھی نہیں ڈالتے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ جو جنرل الیکشن, جو بائی الیکشن ہے, اس میں ہمیں الیکشن کمیشن کا ایسا رویہ نظر آئے. اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی ہم چاہیں گے کہ بالخصوص جو ہماری خواتین ووٹر ہیں, جو بڑے جوش و خروش سے اور اپنے شعور کی روشنی میں اپنا ووٹ ڈالنے آتی ہیں, ہماری ان بہنوں کو, ہماری ان ماؤں کو, بیٹیوں کو کوئی دشواری نہ ہو. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دشواریاں ہوتی ہیں. جنرل الیکشن میں جب میں خود لڑ رہی تھی تو اس وقت ہماری بہنوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں, لیکن وہاں پر الیکشن کمیشن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی, باوجود اس کے کہ ہم ان کو لکھتے رہے, کہتے رہے. تو آپ اس الیکشن میں پلیز الیکشن کمیشن کے تمام لوگوں کو یہ درخواست ہوگی کہ ووٹرز کو دشواری نہ ہو, آپ اس چیز کو انشور کیجئے گا. بہت شکریہ. اب آپ کے سوالات ہوں گے تو جی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی
फैसला कैसे हुआ कि इस्लामाबाद का बंदा इधर से आप इलेक्शन लड़ रहा है, सेनेट का किसी हद तो मारा नहीं इसमें इजाफा नहीं कर लेंगे, वो कह रहे थे क्या यहाँ से कोई ऐसा बंदा नहीं था, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जो यहाँ से उनको मिल सका, पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा वर्कर नहीं था कि जो ये जगह ले सकता हो? देखिए ये सवाल है और हमें इदराक है इस सवाल की संगीनी का, इससे इन्हिराफ हमें नहीं है। आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि सूबे की नुमाइंदगी हो, बिकॉज़ सेनेट के अंदर सूबे के इश्यूज़ को उठाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्योंकि जो अरकान हैं वो हर सूबे के जो केस है उसको लड़ते हैं, लिहाजा हम इसमें तो बहस में नहीं पड़ते कि अगर कोई पैदा पंजाब में हुआ है तो वो सिंध का केस नहीं लड़ेगा। लेकिन चूँकि सिलेक्टेड हुकूमत को लाने के लिए ऐसी फ़िज़ा क्रिएट की गई जहाँ पर जमातों को ये मौका ही नहीं मिला कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड से फ़ायदा उठाकर अपने कैंपेन या इलेक्शन डे पे अपने लोगों को अपने वोट्स के ज़रिए कामयाब करा सकें। तो जब तक ये निज़ाम फ्लॉड रहेगा, जब तक ये निज़ाम जो है इसमें ये झोल रहेगा और जब तक सेलेक्टर्स की हकीकत नहीं बदलेगी, तब तक मेरा ख़्याल है कि हमें ये एक्सेप्शनल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन इन फैसलों के पीछे भी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की गई है। रजिस्टर्ड वोट जो है वो उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर है, उनकी जो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकामात थे उस पर अमल किया गया है। लेकिन हम समझते हैं अब जब ये, और यही पीडीएम का एक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर साफ, शफाफ, मुनसिफाना इलेक्शन के ज़रिए हकीकी मायनों में अवामी हुकूमत आए। पीपल्स पार्टी के वोटर्स को ये हक हासिल है कि जहां वो वोट डालते हैं उनका वोट निकले और जिस कैंडिडेट को वो वोट डालते हैं उसको वोट निकले। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2018 में ये सूरत हाल नहीं बनी, जिसकी वजह से फिर हमें एक्सेप्शंस को देखना पड़ता है। ये तासुर है इस वक्त कि पीडीएम में जिस तरह से दूसरी जमातें जो है वो टफ टाइम देती हैं इस हुकूमत को, जिसको आप मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, इस तरह से पीपल्स पार्टी वो नहीं टाइम उनको टफ टाइम दे रही। पीपल्स पार्टी कहीं कहीं नरम गोश है, इस रवैये पर क्या कहेंगी आप? देखिए तासुर है, तासुर गलत है, सबसे पहले तो ये कहूँगी। दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात होने के साथ साथ वो जमात भी है जिसने पाकिस्तान को उसका आइन दिया, मुतफ़क्का आइन दिया। आइन का पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा एहतराम है, पार्लियामेंट की अहमियत का बहुत ज़्यादा एहसास है और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है इस हुकूमत को टफ़ टाइम देने का, तो आपको याद कराती चलूँ कि इस वज़ीर आज़म को जो सेलेक्टेड का लक़ब है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ही दिया, जिस पर ये और बात है कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ख़ुद तालियां बजाते रहे। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी बड़ा डट के मुकाबला कर रही है कि हर पैदा किए हुए मसले का, खा वो महंगाई हो, खा वो गर्दिशी कर्ज़े हों, चाहे वो गैस की जो इस वक्त हो चुकी है, कई इलाकों में गैस जो है वो आ ही नहीं रही, कई चूल्हे जल नहीं रहे हैं। और सिंध के अंदर हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसका जो वज़ीर आला है इतना टफ टाइम देता है कि सुबह शाम इनको सिर्फ सुबह सिंध और सुबह सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान याद आता है, जिसके हवाले से शेख रशीद जो वफाकी वज़ीर है, जिन्होंने अभी बड़े मुलाजमीन पे हमले की स्ट्रेटजी तैयार की थी, जो उन्होंने ये कहा कि जी अगर वफाकी हुकूमत को किसी से कोई परेशानी है, किसी से कोई तकलीफ़ है, तो वो सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह से है। उन्होंने बरमला ये बात कही, और अगर कोई टफ टाइम दे रहा है तो वो सिर्फ सिंध का वज़ीर आला है, वरना इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, इनके पास कोई फाइल नहीं है पेश करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ सिंध की हुकूमत है। अगर ये हमारे जजीरों पर कब्जा करते हैं तो सिंध लड़ती है, अगर ये हमें गैस बंद करते हैं तो सिंध लड़ती है, अगर ये हमारा एनएफसी में शेयर कम करते हैं तो सिंध लड़ता है, अगर ये हमारे जो बिजली के बिलों में इजाफा है उस पर ना करते हैं तो सिंध लड़ता है। क्या वजह है कि कोई और सूबा नहीं लड़ता, कि कोई और वजीर आला ये नहीं कहता कि इस सूबे की आवाज
रहम करो, इस सूबे की आवाम के ऊपर ये बिजली के बिलों का बोझ ना ला दो, इस सूबे की आवाम को महंगाई का ये तोहफा ना दो। तो क्या वजह है कि वहाँ के वज़राए आला खामोश हैं? कोई और सूबा नहीं जो इस वक्त चीख रहा हो इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ के ऊपर, आवाज़ उठा रहा हो इस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के हवाले से। और वहाँ पंजाब में तो अगर कोई मुजस्समा हमारे हीरो इकबाल साहब का बना देते हैं तो वो माली पे डाल देते हैं इल्ज़ाम। अगर पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हो जाता है तो ये हुकूमत फोरमैन पे लगा देती है इल्ज़ाम। ये नाअहलों का टोला है, नालायकों की फौज है, और अब इन नालायकों की फौज के लिए पूरे सेनेट के प्रोसेस को तब्दील करने के लिए ऑर्डिनेंस ये नालायक हुकूमत ले आई है। हम आज भी आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करते हैं आला अदलिया को कि हम उम्मीद करेंगे कि आप इनके उस ऑर्डिनेंस के प्रोवाइजो से मुतासिर नहीं होंगे, उससे आपका फैसला इन्फ्लुएंस नहीं होगा और आपका फैसला आइन की रूह के और आइन की रोशनी में होगा। ये बताइएगा, आपने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजिम के साथ जो उनका एक्ट था वो बहुत ही काबिल हुकूमत था, लेकिन ये सेम सूरत आपने कभी नजर नहीं आया? क्योंकि यहाँ लेडी हेल्थ वर्कर के मैं उनको होता रहा, जो डॉक्टर थे वो शराब एहतियात बने हुए हैं, उन्होंने एहतियात का ऐलान कर दिया है, वो अस्पताल में ओपीडी का बैठा करते रहे, मरीज मरते रहे, तो कभी याद नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि आपने अगर मेरा जुमला सुन लिया होता तो मैंने ये कहा था कि एहतजाज हर शख्स का हक है, एहतजाज करने से ही पता चलता है कि क्या मुतालबात हैं। तो हमने कभी भी जब पीटीआई 126 दिन का धरना देके पार्लियामेंट के ऊपर धावा बोल रही थी, सिर्फ उस वक्त हमने उनसे इख्तलाफ किया, वरना ना हमने उनके एहतजाज पर इख्तलाफ किया, ना हमने उनका जो एक प्रोटेस्ट मोड था उस पर एतराज़ उठाया। लेकिन एहतजाज की लिमिटेशंस पे हम बड़े वाजे रहे, हमेशा वाजे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुद एहतजाज करती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो चाहे कालाबाग डैम हो, चाहे NFC अवार्ड हो, चाहे 18वीं तरमीम हो, चाहे सूबों का कोई और राइट हो, हमने तो बाकायदा रैलीज निकाली हैं, हमने तो बाकायदा एहतजाज किया है, हमने तो डिक्टेटरों का सामना किया है। तो एहतजाज से पीछे हटने वाली जमात नहीं है, ना एहतजाज से किसी को रोकने वाली जमात है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई जो कहा करती थी कि जी महंगाई जो है वो हुक्मरान की चोरी की वजह से होती है, और जो ये कहा करती थी कि मुल्क में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में अगर पाकिस्तान का नाम जो है वो करप्ट तरीन ममालिक की लिस्ट में आता है तो वो हुक्मरान की करप्शन की वजह से आता है। हम ये कहते हैं कि पीटीआई अपने उन अक़वाल पे आज क्यों नहीं खड़ी है। जब वो महंगाई के बारे में कहती थी कि हज़रत उमर फारूक का दौर उन्हें याद था, मदीने की रियासत की मिसालें कायम करने की बात करती थी, तो क्या मदीने की रियासत में वो सब कुछ होता है या हो सकता है जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर टेयर गैसिंग के नतीजे में हमने देखा? और टेयर गैस भी एक्सपायर्ड टेयर गैस थी, वो टेयर गैस भी जो मारी तो वो एक्सपायर्ड टेयर गैस मारी। अब कल को कह देंगे कि एक्सपायर्ड पड़ी थी, हमने इस्तेमाल करनी थी, हमने, मतलब ये कुछ भी कह सकते हैं, इनका कोई वजीर कुछ भी कह सकता है, इनसे हमें कोई बईद नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है कि एहतजाज करने वालों के मुतालबात तो दूर की बात है, उनसे रवैये भी बेहतर अख्तियार नहीं किए जाते। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात जो सिंध में थे वो हल हो चुके, और फिर वर्कर्स मुतालबात लेके दीगर जगहों से पंजाब से बिलखुसूस इस्लामाबाद के डी चौक पे आई, जहाँ मैं गई उनके पास, खुद एहतजाज पे बैठी थी, उनका हक था। लेकिन उसके दौरान जो कुछ उस हुकूमत ने किया वो बहुत ज़्यादा काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। तो मैं एक बार फिर कहूँगी कि PDM को कंटेनर देने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेलर हमें 2 दिन पहले इस्लामाबाद में दिखाया था उससे तो लगता है कि खाना तो दूर की बात है, वहाँ कंटेनर को आने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन PDM ने भी ठान ली है कि अगर हम आएंगे और मुश्तरका फैसले की रोशनी में आएंगे तो आपको आकर दिखाएंगे। जी, ऐलान हो गया पहला और आखिरी, ये दूसरा है। सवाल ये है कि देखिए सिंध में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है कि अदालती फैसला जो गुज़श्ता रोज आया उसमें वैक्सीनेटर्स को फारिग किया गया है, जो एक बड़ा मेरिट का प्रोसेस था। जब के बावजूद पूरे सिंध में वैक्सीनेशन का प्रोसेस रुक गया है। तकरीबन 1700 से ज़ायद वैक्सीनेटर भर्ती की, 1.5 साल उन्होंने जॉब की, उस पर आप क्या कहेंगे? सिंध में बड़ा बहरान पैदा हो गया वैक्सीनेशन। भाई देखिए, अदालती फैसलों से बहुत सारे इंतज़ामी जो काम हैं वो मुतासिर होते हैं।
تو क्योंकि मेरी जमात अदालती फैसलों का एहतराम करती है और अदालत के ही फोरम पर अपनी बात को रखने को तरजीह देती है, तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसके ऊपर ज़रूर अदालत से राब्ता करेगी वैक्सीनेटर्स के फैसले के हवाले से। और भी जो दीगर फैसले आते हैं उस पर भी हम समझते हैं कि जो मौक़िफ़ एडमिनिस्ट्रेशन का होता है उसको देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आवाम जो है वो जुड़ी होती है हुकूमत के फ़ैसलों से, और अगर हुकूमत का फैसला किसी अदालत के फैसले की रोशनी में होता है तो बाज़ औक़ात उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो दर्दनाक होती हैं, बड़ी तकलीफ दे होती हैं। सो वैक्सीनेटर्स के हवाले से भी मुझे यकीन है कि सिंध हुकूमत ज़रूर, क्योंकि अवामी मसला है, इससे अवाम को तकलीफ होगी, तो यकीनन इस मौक़िफ़ को ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने रखेगी और कोशिश करेगी कि उनको कायल करे कि उनको बताया जाए कि उनके फैसले से एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो तकलीफ में आ सकती है। लेकिन सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत से लोग जो बुनियादी सहूलतें हैं, जैसे सेहत और तालीम की बात की जाए तो उससे महरूम है। तो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का बदला यूं क्रिएट करती है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कराची की बात करें तो सैयद कायम निशान ने ऑनलाइन सूबे का इफ्तिताह किया था, इतना अर्सा गुज़र के बावजूद भी वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हो पाया, इसकी करने की मिसाल, तो ऐसा क्यों है? देखिए, बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन वो तमाम मसाइल शेयर भी करती है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से होते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को हम निभाते हैं और जहाँ हमारी कोई ऐसी गलती होती है जिसे सुधारा जाए तो हम एडमिट करते हैं। ये कभी भी नहीं हुआ, मगर मेरा ख्याल है कि हम ये वाहिद जमात है जो कभी आपके सवाल पे नहीं चिड़ी होगी, कभी आप के साथ बात करते हुए अपना अंदाज नहीं बदला होगा। और मैं इस बात को समझती हूँ जो आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा सूबा जो पाकिस्तान के रेवेन्यू में 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान के अंदर जो गैस पूरे पाकिस्तान को दी जा रही है उसका 70% वो खुद कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो हमें हमारी कंट्रीब्यूशन है जिस हिसाब से सेट की गई है, जो फॉर्मूलाज हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो पूरी नहीं की जाती। और इसीलिए जो आपका सवाल है उसकी बुनियाद यही है कि अगर हम अपने बजट्स को सेट करते हैं, अगर एक गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट साइड दोनों को बनाती है, जिसके अंदर सैलरीज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत जो कमिटमेंट करती है कि जी हर सूबे को ये अमाउंट दिया जाएगा और उस अमाउंट में 4 दफ़ा चेंजेस करती है, ये मेरी और आपकी भी मालूमात में होगा कि एक अमाउंट देने के बाद उसको 4 मरतबा रिवाइज करती है, तो मैंने तो अपने घर का खर्चा एक बुनियादी अमाउंट पे बनाया ना जी। अगर इसमें आप 4 दफ़ा अमाउंट को काटेंगे तो इससे मेरे एक्सपेंडिचर पे फर्क पड़ेगा। तो हरगिज अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन उस बात की भी निशानदेही कराएगी जहां हमारी बजट मेकिंग प्रोसेस, हमारे डेवलपमेंट फंड पर वफाकी हुकूमत की जानिब से कटौती करने पर या पैसा वक्त पे ना देने की वजह से असर पड़ता है। तो ये भी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। कई इलाके हैं सिंध के, बिलखुसूस सांगड़ जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, आप आज जाके सांगड़ की, जो साथी गए होंगे कोई 5-6 साल पहले या 10 साल पहले, आज जाके आप सांगड़ के हालात देखिए और उनके रोड, रस्ते और कम्युनिकेशन नेटवर्क देखें और आप खुद समझेंगे कि आज वहाँ पर क्या तब्दीली, हकीकी तब्दीली आई है। ये तब्दीली का ड्रामा नहीं है, हकीकी तब्दीली आई है, क्योंकि जिस तब्दीली का नारा इमरान न्याजी ने लगाया और जिस सुनामी का जिक्र इमरान न्याजी ने किया, आज उस सुनामी के अंदर हमें पाकिस्तान की आवाम डूबती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जी भाई। अभी वफाक की तरफ से ये किस्सा है कि कंस्टिट्यूशन प्रोसेस में अंदर जवाब किया जाएगा, तो उस सवाल से आप मुझे ये बताएंगे कि पीपल्स पार्टी का क्या प्रोसेस है, क्या पीपल्स पार्टी की दलीलों के तफसील जो है वफाक का हल करेगी? डोमिसाइल के हवाले से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कोई भी ज्यादती, कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ जहाँ ये खबरें मौसूल हो रही हैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ मैं आपको ज़िला सांगड़ का बता दूं कि वहाँ पर जो डोमिसाइल्स मिले थे इन्वेस्टिगेशन के बाद, उनको कैंसिल कर दिया गया। जो झूठे डोमिसाइल पे अकोमोडेट हुए थे लोग,
उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये अमल जारी है, जहां जहां आप लोग निशानदेही करते हैं हम बढ़ चढ़कर इन्वेस्टिगेशन करवा के इस चीज़ को क्लियर करते हैं और इसको सही करते हैं, इसके हल की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल किसी का कोई हक नहीं मारा जाएगा। जब तक पीपल्स पार्टी है, इसके कारकुनान हैं, वो आपसे पहले हर सूबे में जहां भी वो बसते हैं अपने सूबे के हक के लिए आवाज उठाएंगे और उन हुकूक को छीनने वालों से भी मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने सागर का नाम लेके खावर को खुश मैं तो चाहती हूँ ना कि मैं चाहती हूँ कि ये आए सागर। ये अभी कराची में ज्यादा रहता है ना। आपका भी सागर में इसको I know, इसका भी सागर है। अच्छा सागर जमा था माशाल्लाह। सागरी है हम लोग सारे।